अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। माननीय सरवीर जी भी उपस्थित हुए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से ओबीसी से एवं ओबीसी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय RK पाल जी भी उपस्थित हुए हैं। ओबीसी एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष माननीय उमाशंकर जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। निवेदन करना चाहूंगा, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय जीत सिंह जी, माननीय जोनल सचिव RC मीना जी से, वर्किंग प्रेसिडेंट माननीय रंजीत सिंह जी से कि कृपया आज हमारे मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर सिरा तरुणा राजू जी को लेकर आए। कड़ी में आप सभी के समक्ष जो हमारे कोरियोग्राफर्स आए हुए हैं, मनजीत सिंह धावलकर की तरफ से बेटी के ऊपर कोरियोग्राफी है।
मैं इसी कड़ी में जसप्रीत कौर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पे आए और अपना स्पीच संक्षेप में रखिए। जसप्रीत कौर, ये बेटी अपनी लॉ की स्टूडेंट है और समाज के लिए बहुत जागृत है ये लड़की। माननीय उमा शंकर जी ने भी इस कोरियोग्राफी की प्रस्तुति से प्रसन्न होकर 100 रुपये का पुरस्कार दिया है। धन्यवाद सर आपका। जसप्रीत कौर। एंड द थिंग इज दिस कि जिस ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੈਟ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। then I'm sorry to say this, ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਐਕਟ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 30 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ 30 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ then it's very shame for you ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। I'm in college ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦਿਸ। ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੌਫ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ देयर। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਕਾਲਜਸ, ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਈਏ ਨਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਅਗਰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਐਸਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਐਫ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। जय भीम जय भारत। विश्वजीत है बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 127वें जन्मदिन पर आए हाल में सभी को बहुत बहुत बदनाई कम है। मैं उनके बारे में कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहेब ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम क्योंकि हमारी
बाबा साहब ने लिखी। भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, हम दलितों के जीवन में ये उजाला ना होता। मर गए होते यूं ही जून सहकर, अगर हमारे भीम जैसा रखवाला ना मिला होता। मर गए होते यूं ही जून सहकर, अगर हमारे भीम जैसा रखवाला ना मिला होता। जिस पे चलता रहेगा ये भारत सदा, पन्ने पन्ने पे वो रास्ता लिख दिया। हिंद की सरजमी पर मेरे दोस्तों एक इतिहास भीम ने नया लिख दिया। हिंद की सरजमी पर मेरे दोस्तों एक इतिहास भीम ने नया लिख दिया। जय भीम जय भारत। बसंती पवन ही लिए जन्म बाबा, हुए वर्ष ऐसा। पिता राम जी करते सेना में सेवा, मदिरा मांस जिसने कभी नहीं लेवा। माता जी भीमाबाई धर्म की विमुक्ति थी, विनय सद्भावना का साक्षात मूर्ति थी। उनके प्रताप का प्रकाश प्राप्त करके हुआ सूझ विलक्षण कोई जगना ऐसा। अधिकार हेतु किए संघर्ष भारी, मानव में रक्त एक जैसा आए। स्वास्थ्य बस होके जाति पाति है बनाए। युगों की यह पीड़ा जमी थी जो रग रग, गहे अस्त्र जन्म है गया दर्द ऐसा। देश की विधान हेतु संविधान उनका हित है निहित, जिसमें रहा जन जन का एकता अखंडता। स्वदेश प्रेम भाए, धर्म व स्वदेश सदा अपनाए। दिए उपदेश उसे सदा अपनाए, किसी के समक्ष कर कभी नहीं फैलाए। जय भीम जय भारत। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि, शिक्षापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि, शिक्षापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि, शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, शिक्षापदं समादयामि। शिक्षापदं समादयामि। साधु साधु साधु। साथियों, अपनी अपनी जगह पर बैठ गए सभी। जो ये श्रीधर पंथी हमने बोले हैं, और अगर ये बोल के ही काम खत्म हो गया तो शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट में को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। बुद्ध बाबा साहब ने इस मार्ग का 21 साल से करके हमको दिया है, और ये 5 सील के आधार पर ही हमको इस देश का संविधान बना के दिया है, जो मानवतावादी है, हर मानव के हित में है। तो साथियों, इस प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सुरेश जी। पंचशील और उनकी शरण की बात ही
हम संपूर्ण होते हैं। एक बेबस के नींद से पूछो कितनी पीड़ है छाती में, क्या है उसका
संकल्प में स्वभाव खंडित करते हैं। जान लेने वाले हमारे अभी गाँव छोड़ के चले जाएगा वाले कमर लग गया है। एक बालक के रक्त से लिखो वेदों और पुराणों में किसका किसका नाम लिखा है धनुष के बाणों में। पूछो ये पापों की, पूछो ये पापों की रीत क्यों चले। सारा जय भीम जय भारत। जो तुसी कोरियोग्राफी देखी है ये कोई पुरानी तुहानू लग रही है, ये पुरानी नहीं है। ये अज भी साडे समाज दे नाल ये कुछ हो रहा। असल च मैं बोलना कुछ होर सीगा, तो मेरे उत्ते एक दो गल्लां करांगा क्योंकि असीं ज़्यादा उन्होंने सुनना। क्योंकि मेरे पास एक कटिंग आ ਜਿਹੜੀਆਂ WhatsApp फेसबुक के राही आई और असी लगातार अखबारों के पढ़ते हैं, लगातार सोशल मीडिया के पढ़ते हैं और किस तरह के हालात साडे देश के जिस देश सरकार साडे जिहड़े ऑफिसर साहबान जो लीडर साहबान उन्होंने जो विदेशों के जाते तो एको गल करते कि साडी संस्कृति बड़ी महान आ और साडे देश का प्रधानमंत्री और जाके गणेश दी मूर्तियां जिहड़ियां उन्होंने पेंट कर रहा। जिस समाज दे इत्थों बुद्ध की गल हुंदी है, जिथे वो लोग बुद्ध की गल करते हैं उत्थे बुद्ध का फलसफा जिहड़ा उन्होंने दसदे आ, लेकिन जो पेंट करते उदों मतलब जिहड़ियां गणेश दी मूर्तियां पेंट करते हैं। ये एक समाज की बहुत वड्डी त्रासदी एक साडे देश के प्रधानमंत्री दी। वो लगातार 3-3 घंटे गंगा ते खड़ा हो सके, आरतियां उतार सकता, देश का करोड़ों रुपया जिहड़ा वो बर्बाद हुंदा, प्रधानमंत्री रह के एक मिनट जिहड़ा कीमती हुंदा आ। इस करके प्रधानमंत्री ने सोचना चाहिए कि मैं समाज को जो विज्ञानक रास्ते उत्ते जो संविधान कह रहा है उस संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन संविधान तो उल्ट सारे काम हो रहे हैं। अज देश के उत्ते जो असी घटनावां वापरियां मैं उन्होंने बारे एक मिनट के दस देंगा, 1 मिनट 1.5 मिनट लवांगा। तुसीं पिछले समय दे विच थोड़े साल 1.5 साल दे विच पहला एक पढ़िया हैगा कि दलित की रोटी कुत्ता खा गया अछूत और उसको सजा जी कितनी बड़ी दी गई, उन्होंने मार दिता गया। इस तरह बस जी किस तरह हो रहा दलितों के नाम के उत्ते एक मतलब जो कुआं जो एको एक कुआं सीगा दलितों के उत्थे भी जहर पा दिता गया। मंदिर दे विच गई दलित औरत नूं अर्ध नगन करके जोड़ा उन्होंने मृतक किया गया। इस तो बाद पानी के चक्कर दे विच जिहड़ी दलित छात्रा की जान गई। यूपी में दलित बरात शांति के लिए खतरा,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਹਨਤ ਅਸੀਂ ਇਸ संस्कृति ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 साल में 38 दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका। ये अखबारां ਦੀਆਂ ਕਟੀਆਂ जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। बहुत सारिया इस तरह ਦੀਆਂ घटनावां ਜਿਹੜੀਆਂ लगातार वापरियां ਤੁਹਾਡੇ सामने। यूपी कांड होया, सहारनपुर कांड होया, भीमा कांड होया, तरनतन कांड होया। ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੇ FIR ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਦ ਇਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ रहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं बाकी ज्यादा समय उन्हें ना सुनना। जय भीम, जय भारत। हाल में बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों, मेहमानों, बच्चों, महिलाओं, आज बाबा साहब के इस जन्मदिन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और ये बैसाख का महीना वैसे भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध भी इसी महीने की पूर्णिमा को उनका भी जन्म हुआ था। तो हमारे लिए हर तरीके से ये महीना बहुत ही शुभ कार्य है। साथियों, आपने बहुत सारी घटनाएं अभी हमारे पैंथर साहब ने बताई। मैं तो कह रहा हूं ये जो घटनाएं हो रही हैं ये हमारे लिए हमको जगाने का काम कर रही हैं, क्योंकि जब तक ये हमारा समाज जो है सो रहा है, जब तक उस पर अत्याचार हद तक नहीं बढ़ जाता तब तक वो जागता नहीं है। और ये जागने न कारण ही जो है हम आज इस देश में गुलाम बने हुए हैं। अभी जो कोरियोग्राफी आपने देखा ये समाज में कई हजार साल से व्याप्त है, लेकिन हम अभी भी उस व्यवस्था से अलग नहीं हो रहे। अभी हमारे वक्ताओं ने ही कहा कि ये जिसको श्रेष्ठ संस्कृति कहते हैं, मैं कह रहा हूं ये इस संस्कृति को से भारत को ही नहीं खतरा है, पूरे विश्व को खतरा है। क्योंकि आज यहां से लाखों लोग विदेशों में जा रहे हैं वहां पे रोजगार के लिए और इस वायरस को अपने साथ में ले जा रहे हैं। अब तमाम अखबारों में आप घटनाएं भी विदेशों में देखते रहते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम जागरूक हो जाएं और जो इस देश में आज आतंकवाद फैला हुआ है उसको मिटाने के लिए हम लोग इकट्ठे हो जाएं, उस व्यवस्था को छोड़ें जो हमारी गुलामी की हमको निम्न स्तर पर लाने के लिए जिम्मेदार है। बाबा साहब ने भी अपने बुद्ध और उनका धम्म उसमें भी उन्होंने लिखा है कि बुद्ध ने भी उस समय इस बात को जान लिया था कि जब शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया, 3 वर्णों को शिक्षा देने का अधिकार दिया, हमको गुलाम बना करके हमको शिक्षा से वंचित किया, तो वंचित करने के बाद हम लोग जो चूंकि अज्ञानता में पूरा अज्ञान हो गए, अज्ञान होने के कारण से ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था से उससे अपने को छुटकारा पाने के बजाय हम उसी व्यवस्था को
के साथ लग गए और उसको ही बढ़ाने का काम अज्ञानतावश करने लगे, जिसके कारण से हमारी गुलामी आज समाप्त नहीं हो रही। हमें ये तो पता है कि हमको तकलीफ है, हम गुलाम हैं। आज देश में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। पूरे 3% लोग इस देश के धन संपत्ति, धार्मिक हो चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सब पे, चाहे राजनीति हो चाहे न्यायपालिका हो, सभी पे उनका कब्जा है। हम इवन अपनी बात, पीछे बच्ची ने एक बोला था कि हम सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कह भी नहीं सकते डर के मारे। तो जरूरत इस बात की है कि हमारा समाज जो है जागरूक हो, इनसे सबक ले, ही जो आतंकवाद आज फैला हुआ है और इसको आगे बढ़ाए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने यही कहा है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां जब होती हैं तभी राजनीतिक क्रांति होती है। राजनीतिक क्रांतियां तभी होती हैं जब सामाजिक और धार्मिक क्रांतियां होती हैं। तो जरूरत आज सामाजिक और धार्मिक क्रांति की जरूरत है, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है, यही हमारी गुलामी का मुख्य कारण है। तो मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए एक घटना जरूर मैं बता दूं कि ये जो अभी कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने बलात्कार 1 साल पहले 20 साल की लड़की के साथ किया था और उसके भाई ने उसके बाप को मार दिया, वो मेरे गांव के पास बांगरमऊ उन्नाव में एक कस्बा है जिससे 8 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव है, जहां मैं पैदा हुआ। ये लोग आज नहीं, शुरू से ही गुंडे बदमाश प्रवृत्ति के, और वो भी ठाकुर जाति का है, बीजेपी का। पहले ये बीएसपी में भी रहा, बाद में समाजवादी पार्टी से जीता और 2017 में जब ये ठाकुर जो है चीफ मिनिस्टर बना तो उसने पलटी करके बीजेपी में आ गया। तो साथियों, लेकिन वो 4 बार से ये एमएलए है, लेकिन हम ही लोग वोट डालते हैं। हम नासमझ हैं, अज्ञान है। हमको ज्ञान न होने के कारण से हम आज दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से दुश्मनों को हम सत्ता पर बैठाल रहे हैं और हम बराबर गुलाम बने हुए हैं। तो साथियों, एक बार फिर से हम लोग ये जो हाल में प्रोग्राम होता है बाबा साहब के जन्मदिन पर हो या दूसरा, उसका मुख्य जो हमारा उद्देश्य ही है कि समाज को जागरूक करना। तो आइए हम लोग सब जागरूक होकर के दुश्मनों से हम और कुछ नहीं करना, इनसे जो है हम इनकी व्यवस्था से केवल दूर हो जाएं। हम इनकी किसी व्यवस्था में भाग न लें। जिस दिन हम इनका सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी गुलामी उसी धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर। हमारे समक्ष माननीय छोटेलाल जी एसपीओ आरसीएफ उपस्थित हुए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। माननीय डॉक्टर प्रमोद कुमार जी भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं आरसीएफ मेंस यूनियन से माननीय राजवीर शर्मा, राजिंदर सिंह जनरल सेक्रेटरी और उनके साथ आए हुए पूरी टीम का भी यहाँ उपस्थित होने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप लोगों ने, जैसा कि पाल साहब ने कहा, एक देश में एक संकट का माहौल जो बन रहा है और उस दौर से पूरे देश क्षुब्ध है। जो एट्रोसिटी का मामला कोर्ट के माध्यम से जो डिसीजन आए हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, आज भी जाति के नाम पर घोड़े पे चढ़ने से रोका जाता हो। जो इस देश का SC/ST कमीशन के अध्यक्ष पीएल पुनिया को मंदिर जाने से रोक दिया जाता हो, जो इतने उच्चतम पदों पर आसीन है, तो आम जनता का क्या हर्ष हो रहा होगा दूर सुदूर के गांव में, ये आप कल्पना खुद ही लगा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, क्योंकि न्यायालय बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है। हम उस पे न्यायालय पर कोई सवालिया निशान नहीं उठाना चाहते हैं, पर हमें शंका होती है।
हमें शंका होती है ऐसे डिसीजन से जो देश के एक बहुत बड़े जनमानस को कहीं ना कहीं शक करने पर मजबूर करता है। बाबा साहब ने सदन में कहा था कि अगर देश हित और मेरे हित की बात होगी तो मैं देश हित के लिए खड़ा रहूंगा, लेकिन एक दूसरी तरफ भी मेरा नजरिया दृष्टिकोण है कि अगर देश हित और मेरे समाज हित के लिए अगर बात आएगी तो मैं अपने समाज हित के लिए खड़ा होऊंगा। लेकिन आज हमारे सदन में जो 131 सांसद संविधान में व्यवस्था होने के कारण चुनकर गए हैं, किसी ने भी अपना मुंह खोलने का जुर्रत नहीं किया, ना किसी भी की ओर से कोई इस्तीफा या कोई प्रतिक्रिया आई। प्रतिक्रिया आई तो हमारे समाज के बीच में, लोगों के बीच आई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जब हमने आपको चुनकर सदन में भेजा है तो आप अपनी बात को सदन में रखिए। हमारे सम्मुख आके हमें कौन सा राह दिखाना चाहते हैं? जब हमने आपको जनमत दे ही दिया है तो आप अपनी बात को, जिसके लिए आप चुनकर गए हैं, आप सदन में उठाएं, क्योंकि आज का समाज, आज का बहुजन समाज जाग चुका है और इस समाज ने अपना नेतृत्व खुद चुन लिया है। जैसा कि आपने 2 अप्रैल को देखा होगा, ना किसी पार्टी की कॉल थी, ना किसी बड़े नेता का आह्वान था, लेकिन हर एक बहुजन समाज का वो लोग जो समाज के प्रति जिनके दिल में संवेदना है, वेदना है, वो अपने घरों से निकलकर अपने हकों की रक्षा के लिए संघर्ष पे उतर आए हैं। मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा वेलकम स्पीच के साथ हमारे एसोसिएशन के पुरोधा माननीय जीत सिंह जी कि कृपया मंच पे आएं और संबोधन करें। उसके बाद इस मंच का संचालन मैं आग्रह करना चाहूंगा रंजीत सिंह जी से कि कृपया आगे की आप कार्रवाई करें। माननीय रंजीत सिंह जी। गौतम बुद्ध, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी, सिंबल ऑफ नॉलेज, औरतां दे मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नूं नमन करते हुए आज उनके 127वें जन्म महोत्सव को में पहुंचे। सबसे पहले हमारे बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर करना राजू जी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कम सेक्रेटरी इलेक्शंस पंजाब, उनके साथ एडीसी साहब जसवीर जी, डॉक्टर साहबान और प्रोफेसर राजकुमार जी और नेशनल प्रेसिडेंट भगत महासभा डॉक्टर जीवन सोहता जी, जसवीर हीर जी, मैडम आशा क्लेर जी, मेरे ऑफिसर साहबान, मेरी सिस्टर जथेबंदियां, डॉक्टर बी आर अंबेडकर सोसाइटी, गुरु रविदास सेवक सभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बामसेफ, बाबा जीवन सिंह वेलफेयर सोसाइटी, भगवान वाल्मीकि नौजवान सभा, संग्रह ਅਤੇ ओबीसी एसोसीएशन ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, रेल कोच फैक्ट्री दियां यूनियन, आरसीएफ मैन यूनियन, आरसीएफ एम्प्लॉय यूनियन, आरसीएफ मजदूर यूनियन, आईआरटीएसए ईयर दे आगू साहबान और मेरे समाज दे बहुत ही चिंतित, निडर, बुद्धिजीवी भाइयों, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर
सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और जय भीम जय भारत आखता हूं। साथियों, हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं, उसका मकसद क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कोई साधारण फंक्शन नहीं है। ये हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है, उनके लिए उनको आज याद किया जा रहा है। क्योंकि हमने ये आज तय करना है कि आने वाले समय में हमने करना क्या है। क्योंकि हम जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि हम हमारे महापुरुष जो हैं उनको किए हुए कामों और उन द्वारा दिए हुए संघर्ष करके हमें जो हक हकूक दिलवाए हैं, तो उसको याद करना और उसके ऊपर पहरा देना। क्या हम आज लोग ये कर रहे हैं, ये आज सोचने की बात है। क्योंकि जो इतिहास कहता है कि कोई समय था कि हम इस देश के राजे हुआ करते थे। आज इस अवस्था में क्यों आए हैं, उसका कारण ढूंढा जाए सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमने अपने महापुरुषों की बात को ना माना और ना ही जाना। अगर हम उस बात को मानते, जो उनको दिखाए हुए रास्ते पे चलते, तो हमारा ये हाल नहीं होना था। तो उन्होंने कहा था, हमारे महापुरुषों ने सबसे पहले गुरु रविदास जी ने क्या, भाई रे भरम भक्ति सो जान, जो लो सांच वो नहीं पहचान। उन्होंने भक्ति को सिरे से खारिज किया। उन्होंने बोला जो साच है, जो सच है, उसकी लोग को पहचानने की जरूरत है। हमने नहीं पहचानी, हम अभी तक भक्ति में लगे हुए हैं और हमारे हक हकूक सब खत्म हो रहे हैं। लेकिन अब तक भी हम कोई चमत्कार और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। उसके आगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा कि आपकी गुलामी का कारण, आपकी ये हश्र होने का कारण क्या है, वो है विद्या। क्योंकि विद्या, जब किसी मनुष्य को अपने गुलाम करना होता है, तो उसकी जो विवेक बुद्धि है उसको खत्म कर दो, जो उसको भ्रम में डाल दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने बोला था कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए। ये जो सब हुआ, ये विद्या के कारण, अविद्या के कारण हुआ है, जो हमसे खोई गई है। तो उसको भी नहीं हमने जाना। उसके बाद बाबा साहब आए, उन्होंने बोला एजुकेशन इज द की विच कट्स ए ट्री ऑफ इग्नोरेंस। हमने उनको भी नहीं माना। पढ़ाई किया, एमए किया, बीए किया, बड़ी बड़ी डिग्रियां की, आईएएस बने, लेकिन कहां तक सीमित हो गए, सिर्फ अपने तक सीमित हुए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, जिसकी वजह हमारा जो आज आप हमें दिन देखने पड़ रहे हैं। पीछे आपने देखा जो 2 तारीख को हमारे साथ कुठाराघात हुआ है, तो उसका जो नतीजा, जो आपका लास्ट, जो आपकी सम्मान आपके पास बचा था, वो भी खत्म हुआ है। कहते हैं शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, शमा परवाने को जलना सिखा देती है। गिरने से तकलीफ जरूर होती है, लेकिन ठोकर आदमी को चलना सिखा देती है, ठोकर आदमी को चलना सिखा देती है। लेकिन हमने आज भी उन ठोकरों से सीखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने क्या क्या हमें दिलवाया, अभी तक हमें एहसास नहीं है। अभी तक अपने परिवारों में हमने वो सोच को फैलाया नहीं है, और वो लड़ाई हमने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई है। जो लास्ट लड़ाई थी, जो अभी तक आप हार गए हो, वो है आपके सम्मान की लड़ाई। उस सम्मान की लड़ाई में भी मैं एसोसिएशन के हेड होने के नाते बताता हूं कि आने वाले समय में हम किस लेवल तक भी जाना पाया, उस लड़ाई के लिए जो है हमेशा लड़ते रहेंगे, और जहां तक जाना हम पड़ा तो हम जाएंगे। लेकिन आप लोगों को इसका एहसास और आप लोगों को सहयोग चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। क्योंकि अब समय आ गया है, अब यह समय आ गया है कि अब आपके पास कोई अल्टरनेट बचा नहीं है।
जो एक सम्मान था वो भी खत्म हो गया। आपने जो देखा उसी की क्रांति की क्रांति हुई। 2 अप्रैल को हमने पूरा इंडिया जो बंद किया, उसके बाद 10 अप्रैल को वो जो जिन्होंने इंडिया बंद किया उसको सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि जो मूवमेंट को फेल करने वाले होते थे वो हमारे लोग ही थे। अब लोग जो जाग चुके हैं लोग, एसोसिएशन ने हमेशा ही अपने लोगों को समय समय पर जागृत किया है और जागृत करती रहेगी। और दूसरा साथियों, इसके साथ साथ एसोसिएशन इतिहास के बारे में भी बताती रहती है। जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूं तो हमने 1 या 2 किताबें समाज के लिए दी हैं। आज भी जो मेरी तहम यात्रा है, आज अभी डॉक्टर सिरा करना राजू जी रिलीज करेंगे, तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक ही कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि जो एक गुरदास राम आलम जी की 2 लाइनें बोलूंगा, उसके आगे अपने वक्तव्य खत्म करूंगा। उन्होंने बोला था, जो करना सी वो कीता नहीं, पंजाबी दे शहर सी, जो करना सी वो कीता नहीं, जो कीता है किसे कम दा नहीं, कर लेने दी तेरे विच हिम्मत है, जा नामुमकिन दा भज कर ला, पर कम तेनू करना पैना है, भावें कल कर ला भावें अज कर ले। पिछे साडे एक बहुत ही साइंसदान डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस की डेथ हुई है। उन्होंने एक ALS की बीमारी सी, डॉक्टरों की भाषा दे विच है, जिहदी सारे अंग खत्म हो जाते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ दिमाग एक चलता हैगा। लेकिन उन्होंने कहा सी, आई एम थैंकफुल टू द नेचर कि मेरा दिमाग चल रहा। लेकिन मेरे वीरों, मेरे साथियों, मेरी भैनों, कि तुहाडा तां जिहड़ा हैगा शरीर भी चलता, सोच भी है, और तुहानूं दस्सण वाले भी बहुत है, इतिहास भी महापुरुषों का हैगा। लेकिन जे तुसीं ना चले तो आउण वाला समा तुहाडे लई होर खतरनाक हैगा। इन्नियां गल्लां कहंदा होया तुसीं मैनूं बड़े ध्यान नाल सुनिया। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। आपने हमारे समाज को आगे क्या करना है निर्देश दिए हैं और साथ में आए हुए मेहमानों का स्वागत किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। है टीवी पे इंटरनेट पे उपलब्ध है, कृपया आप देख सकेंगे। तो अब मैं उनको प्रस्तुति करने के लिए मंच पे बुलाऊंगा श्री टेकचंद जी एंड साथी। क्यों मार रहे हो? मैं तो चुपचाप शांति से बंद के दौरान शांतिपूर्ण मार्ग से अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन इन दबंगों ने मेरी ये हालत बना दी। मैंने बहुत समझाया इनको, बहुत कहा कि मैं एक पढ़ा लिखा दलित हूं, तो इसमें क्या कसूर है मेरा? अगर मैं अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ रहा हूं, शांतिपूर्वक मांग कर रहा हूं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कोई मैं गुनाह कर रहा हूं क्या? अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपने समाज की भलाई के लिए सोचना, अपने देश के लिए सोचना, अपने संविधान के लिए सोचना क्या गुनाह है कोई? लेकिन नहीं, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, मेरी ये हालत कर दी। घर में मेरे बुजुर्ग मां बाप को जलील किया, घर की बहू बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है? क्या हो रहा है इस देश में? मजलूमों को, गरीबों को, वंचितों को, सबको लज्जित किया जा रहा है। बहू बेटियों की शरेआम इज्जत लूटी जा रही है, उनको निर्वस्त्र करके शरेआम घुमाया जा रहा है। क्यों भाई? अरे भाई, बाबा साहब ने तो ये समाज को, सारे देश को समान अधिकार दिए थे, फिर वंचितों, गरीबों, मजलूमों के साथ ऐसा क्यों? यही सवाल है, यही सवाल मैं आपसे पूछने आया हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? आपके अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है, आपके घरों पे अटैक हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, संविधान को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है, इस देश को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है और हम सो रहे हैं। अभी तक सो रहे हैं हम, बस यूं ही देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे? नहीं, हमें जागना होगा, हमें कुछ करना होगा, हमें सोचना होगा, बड़ा सोचना होगा। अगर हम बड़े काम नहीं कर सकते तो कम से कम छोटी सी शुरुआत तो कर सकते हैं। खुद से शुरुआत कीजिए, खुद अपना कदम आगे बढ़ाइए। आपको देख के दूसरे सोचेंगे, दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ये मत सोचो कि फलां क्या कर रहा है, वो क्या रहा है, दूसरा क्या भाड़ में, आप क्या कर रहे हो। हमें क्या करना है आप देखिए तो सही, शुरुआत कीजिए,
खुद से शुरुआत कीजिए, अपने परिवार से शुरुआत कीजिए। परिवार में बच्चों को उच्च शिक्षा देकर शिक्षित करिए, उनको पढ़ा लिखाकर इतना शिक्षित कर दीजिए कि वो समाज के बारे में कुछ सोचे। गली मोहल्ले, गांव, शहरों में, पूरे देश में बाबा साहब का संदेश फैला दो कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, आगे बढ़ो। अरे बाबा साहब ने भी तो खुद ही किया था ये सब। जब उन्होंने अपने समाज की दुर्दशा देखी तो वो बहुत बेचैन रहते थे, बहुत तड़पते थे। इसी तड़पन, इसी बेचैनी ने उनको मजबूर कर दिया कि अपने समाज के लिए कुछ करें। और उन्होंने खुद ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करके, शिक्षित होकर के सबको न्याय, समानता, इतने अधिकार, खास करके देश, पूरे समाज की औरतों के लिए बहुत बड़े अधिकार दिए जिनसे वो हजारों वर्ष से वंचित थे। संविधान के रूप में ग्रंथ दिया देश लाने के लिए। और हम क्या है? हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते? कुछ करना पड़ेगा, कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना वही धकेल दिए जाओगे जहां से बाबा साहब ने आपको ऊपर उठाया था। ऊपर लाए थे बाबा साहब उठा के, और हम वहीं के वहीं उसी गर्त में जा रहे हैं। अरे भाई उठो, जागो, आगे बढ़ो। अगर नहीं बढ़ सकते, कुछ तो कर सकते हो, किसी का सहयोग दे सकते हो, किसी के पैसे के साथ हेल्प कर सकते हो, किसी को समय दे सकते हो। अरे इंसानियत की तो वैसे ही बहुत कमी है आज के इस दौर में। गैरों में कहां दम है? कमी है तो अपनों की कमी है आज के इस दौर में। आओ आओ, उठो, अंधेरे को क्यों धिकारें, क्यों ना आओ हम एक दीप जलाएं, क्यों ना हम एक दीप जलाएं, औरों की तरफ क्यों देखें, खुद अपना कदम आगे बढ़ाएं। आओ मिलकर हम ऐसा कारवां बनाएं, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएं, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएं।